everyone. Welcome to our second episode of Mool Mantra Parenting. Myself Nisha Chhabria, founder of Mool Mantra Books and Toy Library, and educator since 5 years. I would like to thank each and everyone for loving and sharing our first episode. Today we have very crucial and interesting topic for all the parents. Are you all tired with the eating habits of your little one? Do you want some easy and healthy food advice? Yes, you guessed it right. We will talk about the topic healthy food for kids. Today we have very famous nutritionist and naturopath of Sholapur. She is practicing naturopathy since 13 years and have treated more than 90,000 plus people and guided them to live healthy and medicine free life. She has two clinics, one in Pune and other in Sholapur. So to discuss this topic, who would be better than Sonali Gongre ma'am? It gives me immense pleasure to have you on this episode. Welcome to Mool Mantra Parenting. Hello. Namaste and hello everyone. First of all, I would like to thank Mrs. Nisha and Mool Mantra who has invited me here to speak in front of you all. And today's our topic is healthy food. So we will start, Nisha? Yes. So let's start with the basic. What is naturopathy? What is naturopathy? Naturopathy means nature consists of 5 elements. You know Okay. about the 5 elements. Yes. And which is present in our body. Okay. जब 5 elements का disturbance हो जाता है तो we will fall sick. Okay. So that time we need to focus on our healthy food. Okay. So due to faulty habits, we fall sick. So Okay. that time अपन को completely food combinations, Okay. natural foods which comes from nature, Okay. like fruits, dry fruits, vegetables. Okay. So we have a healing power itself. Okay. So उसको अगर अपने को boost करना है तो we need to concentrate on our nature food. Okay. तो by using of natural food like dry fruits, vegetables, seeds, fruits, we can heal ourselves Okay. easily. तो ये छोटे बच्चों को पहले से अगर अपन ने बता दिया तो कितना अच्छा रहेगा कि पहले से गाइड कर दिया तो। Yes, yes. Nisha, first before starting this question, I would like to tell everyone if children want to get in healthy habits, Okay. parents should pay attention to them first. Right. If they have been in the healthy habits, eating healthy habits Okay. since childhood Okay. for their immunity, they can be a good going forward. Right. So we need to focus on their healthy habits. Right. So चिल्ड्रन के लिए तो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को जानना पहले कि से। हेल्दी फूड क्या है, उनको क्या खाना चाहिए. बहुत बार पता नहीं चलता, हम पैकेज फूड बहुत दे देते हैं Right. बच्चों को, हाँ. इंस्टेंट बहुत देते हैं. हाँ. मेनली क्या लगता है अपन को कि जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ भी एक पैकेट अट्रैक्टिव देखते हैं, हाँ. उस पे बहुत सारे प्रोटीन्स है, विटामिन है, वो मेंशन किए हुए होते हैं. Right. बट अकॉर्डिंग टू नेचर्स रूल क्या करना है कि जो भी कोई पैकेज्ड है, प्रोसेस है, तो उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है बच्चों के लिए. Right. तो हेल्दी फूड में क्या क्या खाना है वो तो मैं बताऊंगी ही, हाँ. बट पहले क्या क्या अवॉइड करना है वो बहुत जरूरी है. Right. Yes. तो यू शुड अवॉइड ऑल दोज थिंग्स विच इज टोटली प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड. तो पहले बच्चों का या घर में सबका ही रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड सॉल्ट, ये कम्प्लीटली यू शुड अवॉइड ऑल दोज थिंग्स. Okay. मतलब आप बोल रहे हो कि शुगर एंड सॉल्ट पूरा मतलब बंद करवाना है? नहीं, आई एम टेलिंग रिफाइंड नहीं यूज करना है. Okay. इंस्टेड ऑफ दैट आप अगर कोल्ड प्रेस या फिल्टर ऑयल यूज करेंगे बच्चों के लिए, Okay. जैसे कि कच्ची घानी का ऑयल बोलते हैं, Okay. जैसे कि पीनट ऑयल रहता है Okay. या राइस ब्रांड रहता है, ऑलिव ऑयल रहता है, बाकी सभी सीजनल ऑयल्स जो रहते हैं वो सिर्फ रिफाइंड नहीं यूज करने हैं. उस Okay. कोल्ड प्रेस या फिल्टर चाहिए वो सिर्फ, Filter क्योंकि चाहिए. रिफाइंड प्रोसेस में 200 डिग्री सेल्सियस का उसको बॉईल करते हैं. Okay. उससे क्या होता है, टोटल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं.
ओके सो ड्यू टू दैट क्या होता है, जितना बच्चों को और अपने को भी, बड़ों को भी न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। ओके तो उसके लिए कम्प्लीटली अपने को रिफाइंड प्रोडक्ट घर के बंद कर देने हैं। राइट शुगर है तो इंस्टेड ऑफ शुगर जो सल्फर एडेड शुगर रहती है उसके बदले जैगरी या रॉक शुगर, खड़ी शक्कर मिश्री बोलते हैं अपन उसको, ओके ओके रॉक शुगर आप यूज कर सकते हैं। हनी है, डेट्स है, ब्लैक रेजिन्स है, वो आप यूज कर सकते हैं ओके रिफाइंड शुगर के बदले। Okay. सॉल्ट में रॉक सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है, Yes. या नॉन रिफाइंड सॉल्ट भी सब्जी में Use या कर पराठास में आप यूज कर सकते हैं। ओके यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, ब्राउन शुगर एंड ब्राउन राइस का बहुत ट्रेंड है, Yes. इसके बारे में कुछ बताइए। जरूर। अभी राइस का भी बहुत मेजर रोल है यहाँ पे, बच्चे बहुत राइस खाते हैं। हाँ। तो वाइट राइस में भी यही रोल है, मतलब होता है फिर से कि वो पॉलिश करके अपने पास आती आते है। हैं, तो okay. उसमें जो विटामिन B12 और थायमिन लेवल जो रहता है, जो बच्चों के ब्रेन को एक्टिवेट करता है, ओके तो वो बहुत जरूरी रहता है, जो कि अपने वाइट राइस में नहीं रहता है। ओह वो क्योंकि पूरा टेस्ट वाइज वो पूरा पॉलिश करके ही आता है। ओके तो उसके बदले अपन अगर ब्राउन राइस यूज हाँ, करेंगे, या कम पॉलिश किया हुआ, मतलब जो आता है राइस, हाँ वो अगर खिचड़ी या दाल राइस यूज Okay. करेंगे तो बहुत बच्चों के लिए हेल्दी रहेगा। ओके ओके तो ये यूज करना है। ब्राउन शुगर यूज करने की जरूरत तो नहीं है, अपन रॉक शुगर और जैगरी यूज कर सकते हैं स्वीटनर, एज ए स्वीटनर। ओके ये बच्चों में पहले से अगर अपन ने आदत डाल दी तो आगे जाके कुछ दिक्कत नहीं है। करेक्ट। बचपन से ही, मतलब छोटे अपन 1 मंथ का बेबी तो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड पे रहता है। हाँ। तब तो पेरेंट्स ने, मतलब मदर ने, हाँ। मम्मा ने उसको बहुत फूड पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि कौन सा फूड खाना है। राइट तो ही मतलब वही न्यूट्रिएंट फीड से जाते हैं Right. बेबी Right. के यहाँ पे। हाँ। तो जो भी है वो फिर मदर ने ये करना चाहिए, फूड पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और जब आफ्टर 6 मंथ जब हाँ। बेबी टॉप फीड चालू करता है, राइट हाँ तब पेरेंट्स ने मतलब ध्यान देना चाहिए कि अपनी आदतें पहले बदलनी चाहिए। क्या होता है, मम्मी अगर मैगी लेके बैठे या चिप्स खाने बैठ जाए तो फिर चिल्ड्रंस इमिडिएटली इमिटेट्स देम। राइट राइट तो इसीलिए बच्चे हमेशा मम्मी और पापा को ही रोल मॉडल समझते हैं अपना। सही तो बच्चे पापा क्या खा रहे हैं, मम्मी क्या खा रही है, उनके प्लेट में क्या है, वो बहुत जरूरी है। तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आप ये जो भी खाना खा रहे हैं, हाँ, हाँ. पहले आप समझ लो। राइट हाँ हाँ यू शुड अंडरस्टैंड Understand फर्स्ट this, right. कि अपने को क्या खाना है। तो जो भी खाना है वो हेल्दी खाना खाना है। है। हेल्दी का मतलब है पैकेज फूड और रिफाइंड फूड नहीं खाना नहीं है। खाना है। घर के डिब्बे भी है जो उसमें अपन चिप्स भरते हैं, चिवड़ा भरते हैं, फील करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो उसके बदले लड्डू, पीनट के लड्डू है, ड्राई Okay. फ्रूट्स के लड्डू है, या बार, एनर्जी बार्स बोलते हैं अपन। ओके तो एनर्जी बार भी आप करके रख सकते हो, डेट्स, रेजिन्स, वॉलनट्स, आलमंड्स। ओके शॉर्टली आप बताना चाह रहे हो कि जो बच्चों को अपन स्नैक्स देते हैं, Yes. इवनिंग स्नैक्स और टिफिन में, सैटरडेज को जो टिफिन होता है, अवॉइड पैकेट फूड एंड गो विद ऑल द फूड मैम ने जो बताया अभी। यस। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे जब भूख लगती है उनको, तो वो क्या चाहते, तो उनको बिस्किट्स, ब्रेड ये देने के बदले आपको उनको ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और घर मखाना मखाना इवन जवार का ये आता है, आटे का पॉपकॉर्न्स भी मिलता है बाहर Okay. मार्केट में। तो वो भी बहुत हेल्दी है, उसमें बहुत कैल्शियम रहता है, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। पीनट लड्डू है, वॉलनट और आलमंड के लड्डू आप बना के रख सकते हैं, उसमें जैगरी या खड़ी शक्कर डाल के, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रोबायोटिक्स लाइक दही, दही और खड़ी शक्कर, उसमें बनाना डाल के, चीकू डाल के आप दे सकते हैं। ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके हाँ। मामास को कुछ क्रिएटिव बना के उसको एग्जैक्टली। देना है। मिल्क विथ फ्रूट्स टुगेदर आर नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। ओके तो मिल्क और फ्रूट्स अवॉइड करके आप दही विथ फ्रूट्स दे सकते हैं। ओके वेरी इंपॉर्टेंट हाँ। पॉइंट।
तो वो बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी आपको देना है। Okay. और आप अपन क्या करते हैं कि एक ही प्लेट में बच्चों को सभी नींबू डाल के अचार, पिकल, दही ये सब एक साथ दे देते हैं। हाँ, तो उसके बदले अपन को क्या करना है, एक पोर्शन सिलेक्ट करना है। अगर मॉर्निंग में पराठास दिए हैं तो पराठा के साथ सैलेड और कोशिम्बीर जैसे बोलते हैं अपन, हर एक वेजिटेबल की कोशिम्बीर अलग दे सकते हैं। उसमें स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स में आप सभी दे सकते हैं, लाइक चना है, चौली है, मतलब किडनी बीन्स बोलते हैं अपन, मूंग है, मटकी है, उसकी भी कोशिम्बीर या भेल करके दे सकते हैं। इनफैक्ट लंच में अगर आपको खिचड़ी देनी है तो ब्राउन राइस की या नॉर्मल राइस की भी खिचड़ी में अगर आप बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, लाइक पोटैटो, बीन्स, ग्रीन पीस, पनीर, ऐसे डाल के भी आप उसका खिचड़ी बना के भी लंच में दे सकते हैं। तो मम्मी को बिफोर वन डे प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या देना है। तो ये थोड़ा अगर आप करेंगे तो बहुत इजी जाएगा कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या दूं, लंच में क्या दूं और डिनर में क्या दूं। तो और बीच का जो मिड स्नैक्स रहता है उसमें भी आप दूध के बदले, मतलब अभी मैंने जैसे बोला था कि दूध अभी का तो प्योर नहीं आता है, बहुत बार एक तो पतला देते हैं, नहीं तो वो प्योरिटी नहीं रहती। तो इंस्टेड ऑफ ये नॉर्मल मिल्क आप पीनट मिल्क है जिसमें which contains lot of proteins. Okay. यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा मुझे, बच्चों को गाय का दूध देना चाहिए या भैंस का दूध देना चाहिए? एक्चुअल में दोनों भी दूध देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गाय या भैंस क्या फीड लेती है वो बहुत जरूरी है, वो डिपेंड करता है। अभी इंजेक्शंस या उनको बराबर फीडिंग नहीं मिलती है, तो उसके कारण कैसे, या धूप वगैरह नहीं मिलती है गाय या भैंस को, तो उसके बदले गाय का तो सबसे बेटर है, अच्छा है दिया तो। और उसके बाद अगर आपके पहचान का कोई मतलब दूध वाला है तो आप अगर उसका केयर वो भैंस का अच्छा ले रहा है तो उससे ले सकते हैं। बट अगर ये श्योरिटी नहीं है तो घर में ही आप नट मिल्क बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये नट मिल्क में बहुत प्रोटीन्स और कैल्शियम रहते हैं जो कि बच्चों के ब्रेन को भी अच्छा स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहता है और उनका वेट गेन होता है। जो बच्चे बहुत थिन रहते हैं तो उनका एनर्जी लेवल, जिन बच्चों को बार बार पैर दुखते हैं या बीमार पड़ते हैं बार बार बच्चे, तो उनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो इसमें पीनट मिल्क है, आलमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है। अपना कोकोनट रहता है वो सोक करके 1 घंटा रखना है और उसका मिल्क मिक्सी से पीस के निकालना है, कपड़े से छान के। उससे अपन जैगरी ऐड कर सकते हैं या कोकोनट मिल्क में रेजिन्स, डेट्स, स्वीट एज ए स्वीटनर, राइट, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है बाकी नट मिल्क की भी। तो 4 to 5 का जो टाइम रहता है पीएम इवनिंग टाइम, तो उसमें आप ये चीजें बच्चों को दे सकते हैं। कंपलसरी एक फ्रूट भी देना है, सीजनल फ्रूट, जैसे कि बनाना है, चीकू है, पाइनएप्पल है, सिट्रस फ्रूट्स भी आप दे सकते हैं उसमें, राइट। तो ये सब चीजें बहुत अच्छा काम करती है। मैम, बच्चों के लिए फ्रूट्स खाने का परफेक्ट टाइम क्या हो सकता है? बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, दोनों को फ्रूट्स खाने का टाइमिंग शाम से पहले, मतलब 6:30 PM से पहले अगर फ्रूट्स खाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि रात को कफ बढ़ता है। अगर अपन शाम को उनको बहुत लेट फ्रूट्स देंगे तो फिर वो कफ एग्रीवेट हो जाता है। तो इसके बदले अपन अगर शाम को 6 बजे से पहले ही उनको फ्रूट्स दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं और एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत पेरेंट्स को, स्पेशली मदर पेरेंट जो रहते हैं, उनको बहुत कंसर्न रहता है कि बच्चों को कंपलसरी खाने के साथ प्रोटीन्स सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या टॉनिक्स आते हैं बाहर, तो बहुत पीडियाट्रिशियन भी प्रिस्क्राइब करते हैं एक्चुअली, बट नेचुरोपैथी में वो अगेंस्ट ही है कि जो भी खाना है वो होममेड ही रहना चाहिए और विदाउट प्रोसेस रहना चाहिए। तो सप्लीमेंट बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अगर कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी तो इट विल कन्वर्ट्स इनटू डिजीज। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप आर्टिफिशियली मेड रहेगी तो वो नहीं देना है बिल्कुल भी। तो ये सब पाउडर्स आर्टिफिशियली मेड रहते हैं,
तो उसके बदले अपने को घर पे बहुत सारी चीज़ें बाय यूजिंग होममेड स्टफ यू कैन मेक योर प्रोटीन पाउडर एट योर होम। ओके। तो इसमें अपने को मैंने जैसे मिल्क बताए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या डेट्स और रेजिन्स का जूस दे सकते हैं। इवन मल्टीग्रेन आटा जैसे कि अपन घर में भी बना सकते हैं, लाइक जवार है, रागी है, मिलेट्स है, और चने का आटा जैसे मैंने फुटाना आता है तो उसका भी आटा अपन घर में बना के इसकी रोटी डेली बच्चों को दे सकते हैं, जो कि इजी टू डाइजेस्ट भी रहती है और उसमें बहुत सारे आयरन, जिंक और कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स है ये। तो ये चीज़ें डेली अगर आप बच्चों को खाने में पराठास में दोगे, ये फ्लोर का मल्टीग्रेन आटा, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये चीज़ें अपन अच्छे से दे सकते हैं। क्योंकि जंक फूड में भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का एक केमिकल एडेड रहता है। इससे क्या होता है, अपने आप बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर्स या चाइनीज़ आइटम खाने के लिए मतलब उनको अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि ये केमिकल उसमें एडेड रहता है। आप देख सकते हैं कभी भी पैकेट्स में भी वो लिखा हुआ होता है, तो बच्चे हमेशा वही मांगने शुरू कर देते हैं कि मुझे यही चाहिए। हम बहुत बार अपन घर पे भी पिज्जा बनाते तो बच्चे बोलते कि वैसा नहीं हुआ है जैसे बाहर खाते। हाँ, या फिर बाहर का खाना क्यों उनको ज्यादा पसंद है, कि ये केमिकल के कारण उनको वही खाने की बार बार इच्छा होती है। तो इसीलिए फूड अवॉइड करना है। फिर कभी कभी बेबी फैट बच्चे में, चाइल्ड ओबेसिटी भी आजकल बहुत हो रहा है, तो उसमें ये जंक फूड का ही एक बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जंक फूड तो इसके बदले अगर ये नेचुरल फूड अगर अपन स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिक बच्चों को जंक फूड खाने की इच्छा नहीं होती है। ये आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली ये हेल्दी फूड अगर उनको देते रहेंगे तो बच्चे आपको बिल्कुल भी वो खाने की इच्छा है या वो डिमांड आपको नहीं करेंगे। द मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी ऑफ किड्स? अभी दिस एपिडेमिक एंड पैंडेमिक सिचुएशन वी नीड टू कंसंट्रेट इम्यूनिटी बूस्टर स्टफ लाइक तुलसी है, अपने ही घर में बहुत सारे स्पाइसेस है, तो आप ये यूज कर सकते हैं लाइक काढ़ा करके उसका। तो बच्चों के लिए तुलसी, जैगरी, सिनेमम, दालचीनी जो बोलते हैं, इलायची है, ब्लैक पेपर है और अदरक, इसका काढ़ा बनाना है बॉईल करके, डेली बच्चों को ये पिलाना है कंपलसरी। इससे क्या होता है कि इसमें नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इससे बच्चों की इम्यूनिटी और इट एनहांस योर लंग कैपेसिटी ऑल्सो। तो इसके लिए कंपलसरी बच्चों को अगर कफ और कोल्ड कंजेशन अगर रहता है तो कंपलसरी ये काढ़ा डेली बच्चों को एक टाइम देना है। मॉर्निंग में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट बच्चों को कैबेज की स्टीम, मतलब पत्ता गोभी जो रहता है वो ग्रेट करके यू हैव टू ऐड इनटू बॉइलिंग वाटर एंड जस्ट इनहेल द स्टीम। डीप इनहेल करके बच्चों को बोलना है ये स्टीम लो आप। तो इससे भी बहुत अच्छे से चेस्ट कंजेशन कम होता है, कफ में बहुत फायदा होता है। इनफैक्ट ये वायरल इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो स्टीम है, काढ़ा है, जैसे कि बोला हेल्दी फूड है, सूप, वेजिटेबल का सूप बहुत अच्छा काम करता है इस सब में इम्यूनिटी के बूस्टिंग के लिए। तो इसमें पालक और बीटरूट का सूप है, डेट्स और किशमिश का काढ़ा, मतलब 4 to 5 डेट्स और 10 to 15 ब्लैक किशमिश अगर बॉईल करेंगे आप और थोड़ा नॉर्मल ल्यूकवार्म करके अगर बच्चों को पिलाएंगे तो ये भी अच्छी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये काढ़ा अच्छा रहेगा। इनफैक्ट सिट्रस फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल जूस है, मौसम्बी जूस है, ऑरेंज जूस है, टमाटो सूप है, तो ये चीज़ें भी आप इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए दे सकते हो बच्चों के लिए। लास्ट क्वेश्चन, शुड चिल्ड्रन हैव डाइट प्लान? इट मीन्स दैट इनटेक टाइमिंग कैसे होना चाहिए बच्चों का, बता दीजिए थोड़ा। डाइट प्लान मतलब कैसा है कि पहले तो इसको डाइट प्लान नहीं समझना है। तो जो भी फूड हम खाते हैं उसको एक अपनी लाइफस्टाइल बनानी है मेनली।
तो ऑफ कोर्स अब जिन बच्चों को मतलब कोल्ड है, कंटिन्यूसली कफ रहता है, फीवर रहता है, या बाकी भी कोई डिसऑर्डर रहते हैं, लाइक पेट के प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उनको अलग टाइप्स के प्लान्स रहते हैं जिससे रूट कॉज से वो निकाल दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट प्लान्स। बट ऐसे अगर हेल्दी फूड खाना है तो उसको कुछ प्लान के बदले अपन इसको पहले तो लाइफस्टाइल समझेंगे, ट्रीटमेंट नहीं समझेंगे। और बच्चों की भूख 3 to 4 आवर्स में उनको कंपलसरी खाना देना ही है। खाना लाइक जैसे कि मैंने फ्रूट्स बोले या काढ़े बोले, सूप्स बोले, बेल के जैसे मैंने स्प्राउट्स बोले, तो ये चीज़ें प्लान करके अच्छे से बच्चों को अगर आप 3 से 4 घंटे में, हर 3 से 4 घंटे में दे शुड हैव समथिंग लाइक जैसे मैंने ये बोला कि ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, तो एक प्रॉपर उनको प्लान करके डेली देना है। अगर इसके बीच में बच्चों को मतलब अलग कुछ टाइप्स की बीमारियां हैं तो आप फिर उसको प्रॉपर गाइडेंस के नीचे फिर कंसल्ट करके डाइट प्लान सेट करके बच्चों का ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जैसे कि बनाना है या दही है, जिनको बहुत कफ रहता है तो उनको नहीं चलती ये चीज़ें, तो उनके लिए अलग फिर अपने को प्लान करके देना पड़ता है। तो जैसे कि 6 मंथ्स के बाद अपन हर एक बच्चों को प्लान करके देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रकृति, यस, और उनके प्रॉब्लम्स, इश्यूज। तो वैसे भी आप बच्चों के लिए अलग से प्लान करके ले सकते हैं। बट जैसे कि मैंने सब मेंशन किया, आई हैव मेंशन ऑल दोज थिंग्स कि क्या आपको खाना चाहिए और बच्चों को क्या देना चाहिए। तो ये अगर आप अच्छे से समझ लेंगे और स्टार्ट करेंगे बच्चों को देना, तो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और वो हर एक बीमारी से दूर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इसमें और एक चीज़ है कि बच्चों को चीज़, बटर, पनीर, ये चीज़ें भी बहुत पसंद रहती। ऑफ कोर्स इसमें भी अच्छे प्रोटीन्स रहते हैं, बट मैं तो सजेस्ट करूँगी एज पर नेचर रूल कि अगर घर का बटर, लोनी बोलते हैं हम, तो अगर वो देंगे आप, घर का बटर बनाए, क्योंकि वो नॉन प्रोसेस रहता है, तो अगर वो आप उनको चपाती के ऊपर, पराठास में या भाकरी के ऊपर डाल के अगर बटर देंगे, अपना होममेड बटर, तो सबसे बेस्ट वो ऑप्शन रहेगा। पनीर आप होममेड पनीर देंगे तो भी बेस्ट है, बॉईल करके खाएंगे तो भी। और क्योंकि बाहर का बटर और चीज़ वो प्रोसेस रहता है, बट कभी कभार लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चों को हर एक चीज़ में चीज़ डाल के देना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट आप उसमें बटर, घर का लोनी वगैरह देंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोटीन्स भी रहते हैं और वो इजी टू डाइजेस्ट रहता है। क्योंकि बटर और बाहर के चीज़ में बहुत सारा सॉल्ट एडेड रहता है और वो प्रोसेस रहता है, तो वो अगेन फिर रिफाइंड प्रोडक्ट में कंसिडर किया जाता है। तो उसके बदले आप ये चीज़ दे सकते हैं। इनफैक्ट पनीर भी आपको बनाना है तो जैसे मैंने नट मिल्क बोले थे, उसका भी आप होममेड पनीर बना सकते हैं। ओके। तो वो भी आप देंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। मैम, आपको ये कॉन्सेप्ट मूल मंत्र बुक्स एंड टॉय लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? रिटर्न एक्सचेंज जैसे होता है, मैंने आपको बताया। सच में ये सबसे नया और इनोवेटिव बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे कि मैंने निशा को पूछा कि एक्चुअल में मैंने इसका डीपली पहले इंफॉर्मेशन ली कि क्या है ये, तो जब बताने के बाद तो मुझे लगता है कि अभी के इस पेरेंट्स के लिए सच में बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैं खुद एक पेरेंट हूँ और इसके मुझे लगता है कि मैं खुद तो कभी ऐसे टॉय खरीदने के लिए खास कर निकलती नहीं हूँ, और ऐसे लाते तो कुछ चीज़ के बाद बच्चे उसको टायर्ड हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं कि बस अभी वो उसको देखते भी नहीं है वो 5-6 दिन के बाद। तो ये कंसेप्ट इतना अच्छा लगा कि इवन बच्चों के ब्रेन को भी ये बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे और बच्चों के लिए ग्रास्पिंग पावर है या बाकी भी कंसंट्रेशन है, इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो मुझे तो लगता है कि सब पेरेंट्स ने इसको सच में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बच्चे टीवी, मोबाइल और गैजेट्स में बहुत बिजी हो जाते हैं। बट उसके बजाय अगर ये चीज़ें वो सीखेंगे, इसमें अगर बिजी रहेंगे, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुशी होगी कि बाबा हाँ, बच्चे किसी में तो बिजी हो गए और कुछ तो अच्छे सीख रहे हैं, कुछ तो अच्छा सीख रहे हैं।
उनकी ब्रेन और कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा इम्प्रूव हो सकती है इन चीज़ों से। बुक्स है जो कि हम भूल चुके हैं, बुक्स बच्चों को देना, स्टोरी बुक्स मेनली यूट्यूब हम हाथ में दे देते हैं और स्टोरीज लगा देते हैं, फिर अगेन स्क्रीन और ऑल दोज थिंग्स। तो उसके बदले अगर बुक्स बच्चे पिक्चर्स देखेंगे बड़े बड़े और वो पढ़ेंगे तो उससे बहुत कुछ वो सीख सकते हैं। तो ये सच में एक अच्छा कंसेप्ट है और ट्राई करना चाहिए हर एक लोगों ने, पेरेंट्स ने, और बच्चों को भी एक बार नया कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा नया, तो जरूर ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। On behalf of Mool Mantra team, I would like to thank Sonali ma'am for all the kind and significant guidance on this topic, which has already been at the highest priority for all the parents. I hope this session will help parents and reach maximum people. Thank you. See you again with another interesting topic.